Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 6 December 2021. So, let's start today's discussion. The first article is about Army Operation in Nagaland goes RV, 15 civilian death. 6 killed in mistaken fire, 9 more, and soldiers' death in the violence. So, basically, and we can say a mistaken violent event that happened in Nagaland, which actually took the lives of 15 civilians and 2 or 3 of the soldiers. And we'll see the article what actually happened in the event. So, at least 15 civilians and 1 soldiers were killed following a botched operation by army in Mon district of Nagaland on Saturday evening and retaliating violences in ensuing the 24 hours. Unconfirmed reports put the civilian death toll to 17. Two villagers have been missing since the incident. The state government and the army have ordered an investigation. An army's 3 corps based near Dipapur town in the state are admitted to the intelligence failure with the statement of regret. सो बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो इवेंट हुआ है जहाँ पर कि एक मिलिट्री या फिर आर्मी ट्रूप्स आए थे एंड विदाउट एनी प्रायर नोटिस या कुछ जो है दे स्टार्टेड ओपन फायरिंग, जिसके वजह से ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें सोल्जर्स को भी चोट लगी है, कुल 2 सोल्जर्स की जान भी गई है और सिविलियंस भी गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि दे विल है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर किसके तरफ से क्या चीज़ हुआ है. So around 5 p.m. on Saturday, a special unit of army mistakenly opened fire at the pickup van carrying coal miners from Tiru areas to their villages about 15 kilometers away, killing 6 on the boards. So you all of sudden open firing की वजह से जहाँ पर कि जो माइनर्स थे जो लेबरर्स थे जो वहाँ से जा रहे थे अपने गांव के लिए कोल माइन लेके, उन पर अटैक किया गया था, उधर उनकी जान गई है. सो क्लैश इरप्ट्स. About an hour later, 7 more civilians and soldiers were killed when people, alarmed by the gunshots and death of their fellow villagers, clashed with the troops with matches and sticks. क्रॉस फायरिंग में अगर बोले तो सामने से भी सिविलियंस वेंट विद देयर वेपन्स एंड जिसकी वजह से सोल्जर्स की भी मौत हुई है. Several civilians and soldiers were injured. At least 2 vehicles of the army special units were set on fire. On Sunday, the protest erupted across Nagaland with a mob of approx 500 men attacking and vandaling the camp of paramilitary Assam Rifles in the district headquarters of Mon. Sorry. At least 2 persons were killed during the attack. ये इवेंट के रेपरकशन में 500 लोग ऐसे डायरेक्ट अटैक या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि हाँ एक प्रोटेस्ट के लिए गए थे जिसमें कि उन्होंने गाड़ियों को आग लगाई एंड कुछ कुछ सिविलियंस और पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड भी हुए इसके वजह से. दूसरी चीज़ में है इट सेट दैट सिक्योरिटी फोर्सेस द इंसिडेंट एंड कन्फर्म द जवान्स डेथ. डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल सेड 4 सिविलियन इंजर्ड during the Saturday's violence and were admitted to the hospital, while 2 were taken to the Assam Medical College and Hospital in Dibrugarh. Local tribal organization alleged that 11 villagers were injured and feared that 2 were still missing right now. Soon after the violence of Monday, 144 सेक्शन लगा दिया गया वहाँ पर मॉन से और वो सारे डिस्ट्रिक्ट पर 144 सेक्शन लगाया गया है. स्टेट गवर्नमेंट ने फ़िलहाल के लिए वहाँ के मोबाइल इंटरनेट और डेटा सर्विसेज को सबको सस्पेंड कर दिया है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड दे आर थिंकिंग कि वो लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे. इस आर्टिकल के रिलेटेड और भी आर्टिकल्स आएंगे जिसमें हम 1-2 केसेस के बारे में पढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल अगर हम देखें तो दैट इज़ फैमिली डोनेट्स मोरारजीज इफेक्ट्स ऑफ टू म्यूजियम ऑफ पीएम. सो हमारे जो मोरारजी देसाई थे उनके कुछ कुछ मतलब हम बात करें तो उनके कुछ कुछ रेमिनेंस जो हैं वो म्यूज़ियम को दिया गया है या उनके फैमिली वालों ने उसको डोनेट किया है म्यूज़ियम को. तो वो क्या क्या डोनेट किया विल लेट यू नो एंड देन विल स्टडी अबाउट दी वी कैन से the participation of Morarji Desai in the
इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया या फिर टू द इंडिया नेशन, कैसा उनका पार्टिसिपेशन था। तो जो जो उन्होंने डोनेट किया है दैट इज़ अ गीता, द पार्कर पेन, गांधी टोपी एंड तुलसी माला। A copy of Bhagavad Gita, a Parker pen, Gandhi topi, and Tulsi Mala are some of the personal effects of former Prime Minister Morarji Desai that will make their way to the Museum of Prime Minister to be set on inaugurated in few weeks. वहाँ पे म्यूजियम को दिया गया है ये। So, the former Prime Minister's great grandson, National Vice President of Bharatiya Janata Yuva Morcha, the youth wing of BJP, has taken on the task of shifting through the memories will be handed over to the museum authorities. An ordinary Parker pen that was held dear by the former Prime Minister has been interestingly story attached. In 1977, an aircraft Morarji was traveling on the crashed in Johar, and while the five-member crew perished, Morarji and his encouraged survived. With the former Prime Minister the least harm, he came away with the fractured ribs and somehow associated this pen with an escape, as it had been in his pocket near his heart. सो ये पेन की स्टोरी वही है कि वो क्रैश के बाद भी वो बच गए थे, एंड उस टाइम पे उनका ये बोलना था कि दिस वाज द ओनली थिंग दैट वाज विथ मी, सो देयरफॉर इट हैज़ एन अनदर इम्पॉर्टेंस इन हिज लाइफ। उसको छोड़ के अगर भगवत गीता, तुलसी माला की बात करें तो ये सब चीज़ 1995 में जब मोरारजी देसाई जी की जो आखिरी कुछ मंथ्स थे उस टाइम पे ये सब चीज़ उनके साथ थी। गांधी टोपी अगर मैं बात करूँ तो ये उनकी वन ऑफ द कलेक्शंस थे जो कि उनके पास रखे गए थे। उनकी फ़ोटोज़ में भी ये हमेशा देखा कि उनके साथ ये थे। सो ये सब चीज़ों को जो है फ़िलहाल के लिए पीएम म्यूज़ियम में दिया गया है, डोनेट किया गया है, जो कि वहाँ पे हम बोल सकते कंजर्व किए जाएंगे। उसके बाद एक सेकेंड, ओके। सो अब देखते हैं मोरारजी देसाई जो थे उनका कंट्रीब्यूशन क्या था इंडिया को लेकर, या उन्होंने किस हद तक हमारे लिए काम किया है, क्या काम किया। एज वी नो ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के लेवल पे भी वी हैव सॉ कि ही हैज़ वर्कड अ वेरी बेनिफिशियली फॉर द स्टेट एज वेल एज द कंट्री। रिसेंटली ये साल जो है उनका 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया था, जिसमें हमने ये देखा था कि उनके लिए अलग अलग इवेंट्स रखे गए थे एंड उनके बर्थडे को ऑब्जर्व किया गया था। उनकी अगर हम बात करें, ही वॉज द 4th प्राइम मिनिस्टर एंड सच अ फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले जो नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हमेशा बने इंडिया के वो हमारे मोरारजी देसाई थे। उनकी लाइफ की अगर हम बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन 1896। गुजरात के एक भुलसार डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था, और 1918 में आफ्टर ग्रेजुएटिंग उन्होंने विल्सन सिविल सर्विस इन बॉम्बे को ज्वाइन किया एज अ डेप्यूटी कलेक्टर, जहाँ पर उन्होंने 12 साल तक काम किया। उसके बाद ये तो उनकी पर्सनल लाइफ की चीज़ की थी। अब अगर फ्रीडम स्ट्रगल पे आए तो फ्रीडम स्ट्रगल में ये था कि 1930 में उन्होंने जब इंडिया अपने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के मिड्स में था, उसके वर्किंग में था, उस टाइम पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया सपोर्टिंग महात्मा गांधी, श्री देसाई, और इनके साथ काम करते करते उनको कहीं ना कहीं ही वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट इन इट, एंड देयरफॉर उन्होंने डिसाइड किया कि ही विल रिज़ाइन फ्रॉम दी पार्टी गवर्नमेंट, जो कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर बेसिकली हम बात करें। उन्होंने बोला कि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क दैट ही वॉज डूइंग एज अ डिप्टी कलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड वर्किंग विद महात्मा गांधी एंड ऑल द मेंबर्स उन्होंने डिसाइड किया कि ही विल रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड ही विल वर्क फॉर द स्ट्रगल और बी द पार्ट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ इंडिया। उस टाइम पर मोरारजी देसाई को लगभग 3 बार जेल में डाला गया था, जेल में रखा गया था, और वो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे और सेक्रेटरी ऑफ गुजरात भी थे उस टाइम पर। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी पार्ट लिया, जैसे कि अक्टूबर में हुआ 1941 में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें उन्होंने पार्ट लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में भी ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट अ क्रूशियल रोल इन क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद 1952 में
अब पॉलिटिकल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, सो 1952 में ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे। उन्होंने फिर यूनियन कैबिनेट ज्वाइन किया यहाँ पर, और फाइनेंशियल जो फाइनेंस पोर्टफोलियो है वो उनको दिया गया था संभालने को। देन 1963, फ्रॉम 52 से लेके 63 तक ही वर्क, एंड 63 में उन्होंने जो यूनियन कैबिनेट जिसमें काम कर रहे थे अंडर द कमराज प्लान, उनको रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के चेयरपर्सन वो बने। और उसके बाद अगर हम देखें उनको फिर 1975 के टाइम पे इमरजेंसी जब डिक्लेयर किया गया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट करने के बाद उन्होंने, हमने देखा कि उन्होंने वो हंगर स्ट्राइक पे गए थे और उन्होंने अपने एक मूवमेंट चालू किया था जिस वॉज नवनिर्माण मूवमेंट ऑफ गुजरात। ये जो नवनिर्माण मूवमेंट है या नवनिर्माण आंदोलन था, ये बेसिकली क्या था कि गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिलता, सोशल सपोर्ट नहीं मिलता, उनके लिए ये मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था। और कहीं ना कहीं उनका ये मानना था हमेशा से कि अगर मोरारजी देसाई जी की बात करें तो उन्होंने हमेशा से गरीबों के लिए बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अकॉर्डिंग टू हिम हम हमेशा से ये था कि अनलेस द पुअर्स और जो प्रिविलेज्ड हैं उनको डिसेंट लाइफ नहीं मिलेगा, हमारे इंडिया एज अ कंट्री का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक प्रिविलेज्ड और इक्वल को एक डिसेंट लाइफ दोनों को सेम तरीके से नहीं मिले तो देयर इज़ नो नीड, या फिर अब तक जो भी इंडिया कर रहा है उसमें कोई भी हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने प्रॉपर एज अ नेशन कुछ अच्छा किया है। उसके बाद फॉर हिम कहीं ना कहीं ही वॉज अ वेरी डिसिप्लिन्ड, और या फिर फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ्स, ठीक है। और उसके साथ ही रूल ऑफ लॉ एक चीज़ था कि रूल ऑफ लॉ इज बेसिकली पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बिकम अ फियरलेस टू एक्सटेंड वेयर इवन द हाइएस्ट इन द लैंड्स ऑफ कमिट नो वन नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिपीटेडली सेड। उन्होंने बोला कि अगर एक रूल लाया गया है इट इज़ इक्वल फॉर ऑल। ये मत देखो कि प्राइम मिनिस्टर है या कोई पुअर पर्सन है तो उस पर लगेगा, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं लगेगा। रूल ऑफ लॉ के फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा मानते थे ये। तो दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरारजी देसाई। अगले आर्टिकल पे आते हैं। अगला आर्टिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, विच स्टेट्स द नीड टू रीओपन आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी की अगर हम बात करें, हमें सभी को पता है आंगनवाड़ी क्या होता है, राइट। एक प्रॉपर जैसे कि स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स सेम तरीके होते हैं जहाँ पे आपको मिड डे मील दिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, एक एम्प्लॉयमेंट सोर्स भी मिलता है लोगों को आंगनवाड़ी में। उसके रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। पहले हम ये आर्टिकल देखेंगे, इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं प्रॉपरली। अगर मैं देखूँ किस पार्ट का है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और उनके इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में ये कवर करता है। सबसे पहले बात अगर मैं बताऊँ कि व्हाट इज़ आंगनवाड़ी, ठीक है। आंगनवाड़ी अगर मैं बात करूँ प्रॉपर इंडियन लैंग्वेज में तो इट मीन्स अ कोर्टयार्ड, अ शेल्टर। ये जो आंगनवाड़ी सिस्टम है ये 1975 में इंडियन गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम जो है उसमें चालू किया था टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ हंगर एंड मालन्यूट्रिशन। दैट वाज द रीज़न कि आंगनवाड़ी एज अ स्कीम अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस में इसको स्टार्ट किया गया था। आंगनवाड़ी अगर हम बात करें बेसिकली ICDS दैट इज़ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर आता है, जिसमें कि हर एक बच्चे इट प्रोवाइड्स द चाइल्ड्स हेल्थ केयर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स, हेल्थ चेकअप, ठीक है, हाउस होल्ड सर्विसेज, जो भी सब चीज़ें, ताकि एक कोई गरीब परिवार को उनको इनकम भी आए एंड एटलीस्ट दे कैन गेट अ न्यूट्रिशियस फूड, जिसकी वजह से ये आंगनवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया है। तो अप्रॉक्सीमेटली दिस ACDS कवर्स 88 okay. It approximately covers 88 million of children जो कि आंगनवाड़ी के मेंबर हैं, इनका एज वेरीज फ्रॉम 0 to 6 years। और वर्कर्स भी जो यहाँ पे काम करते हैं, जो मतलब मिड डे मील में, मतलब एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में अगर बात करें, जो एम्प्लॉयड हैं यहाँ पर उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है, हेल्थ चेकअप दिया जाता है अकॉर्डिंग टू दी ID इनसाइट सर्वे जो है ID इनसाइट का। इसमें भी वही चीज़ बताइए, ID इनसाइट के हिसाब से फैमिली वो जो मेंबर्स हैं उनको भी प्रॉपर नरिशमेंट और उनकी फैमिली को प्रॉपर सजेशन दिया जाता है।
अब अगर मैं बात करूँ ये अभी आर्टिकल क्यों आया है, तो हमने नोटिस किया था कि जब से लॉकडाउन या पैंडेमिक सिचुएशन 19 में स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी शट डाउन किए गए, और कहीं ना कहीं अप्रैल 2020 में आते आते इट वॉज क्लोजली शट डाउन इन इंडिया. It has not actually impacted the health sector, but also the income factor of the individuals going there as an employed. So the shutdown of Anganwadi services have a severe impact on the services delivering and a vital social network. Even though अभी बोला जा रहा है कि you should open it, but statics की अगर हम माने, लाइक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस जो है हमारा NFHS 5, उसकी बात माने तो ये चीज़ बोला जाता है कि 5 ईयर्स से कम जो बच्चे हैं अभी के टाइम पे 2019-20 में ये नोटिस किया गया था कि 2019-20 के हिसाब से सिर्फ 15% बच्चे थे जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन लिया आंगनवाड़ी में इन 2019 बिकॉज ऑफ द पैंडमिक सिचुएशन. उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि होम स्कूलिंग जो था, जो कि हमने देखा था कि वुमेंस प्रोवाइड कर रहे थे होम स्कूलिंग, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया था 58% बिकॉज ऑफ द कोविड. रूरल हाउस होल्ड जो बाई ट्यूशन वर्क जो है कमाते थे, उनका भी रेशियो बहुत कम हो गया था. इसकी वजह से ये रेशियोज जो डिक्लाइन हुए, माल न्यूट्रिशन बढ़ा है, देन एम्प्लॉयमेंट कम हो गए हैं, हेल्थ चेकअप्स नहीं मिले, हेल्थ फैक्टर इम्पैक्ट हुआ है, ये सब रीज़न की वजह से इट स्टेटेड दैट यू शुड री ओपन दी आंगनवाड़ी बिकॉज इट बेनिफिट्स अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. So it will not only help the children to get the proper potential foods or nutritious food, but it will also give a proper basic education to the children. वुमेंस के लिए अगर हम बात करें तो इट एक्चुअली गिव्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनको एक स्कोप मिलता है काम करने को. बिकॉज नॉर्मली अगर हम देखें, कोई अगर एक वुमेन है जो शायद गांव से पढ़ी हैं, 9th 10th तक पढ़ी हैं, 12th तक पढ़ी हैं, उनको रूरल अर्बन एरिया जैसी जगह पे तो काम दिया नहीं जाएगा एटलीस्ट बीइंग, या फिर अगर दिया भी जाएगा तो इट वोंट बी अ वाइट कॉलर जॉब. एजुकेशनल सेक्टर में अगर मैं बात करूँ, so आंगनवाड़ी में it gives an economic scope to the women also to work and get their daily at least income अपना रिलीज कर पाए. और नेशनल इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का था, उसमें ये भी बोला गया था कि आंगनवाड़ी जो है उसको यूनिवर्सलाइज कर देंगे हम ऑल ओवर इंडिया, सो दैट लोगों के लिए भी एक अच्छी बात हो वो. अब अगर मैं बात करूँ चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, अगर हम बोल तो नहीं कि हम ओपन कर देंगे, बट व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग करेंटली. सबसे पहला चीज़ जो है वो लैक ऑफ स्किल सेट जो है, जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है. दो आंगनवाड़ी बोलते हैं विल गिव यू न्यूट्रिशन एडवाइस, हेल्थ केयर फैसिलिटी, सब कुछ, बट उस लेवल ऑफ वर्किंग या उस लेवल ऑफ हम बोले वर्कर्स नहीं मिल रहे जो विल बी स्किल अबाउट इट. पैंडमिक के सिचुएशन में वो चीज़ ओपन करना थोड़ा सा, यू नीड टू बी यू शुड नीड प्रिकॉशंस, बट उतना लेवल ऑफ अवेयरनेस नहीं है. कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिसोर्सेज भी है. ठीक है, एक तरीके से यू कैन फाइनेंस इट, बट यू नीड द पीपल हु विल गो एंड टीच देम, यू नीड द पीपल हु विल वर्क देयर. ठीक है, एक लैक ऑफ रिसोर्स भी है, लैक ऑफ टाइम. अगर मैं बात करूँ तो सर्विस बोला है कि एजुकेशन इज़ यूनिवर्सलाइज, एवरीवन शुड गेट इट, राइट, बट उतना टाइम लगेगा और लोग उतना टाइम देना नहीं चाहते एजुकेशन को रूरल एरिया में, एंड दैट इज़ द रीज़न कि कहीं ना कहीं इट इज़ बिकमिंग एन ऑब्स्टिकल फॉर आंगनवाड़ी. इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग ने ये बोला था कि विल फ्रीक्वेंटली डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ आंगनवाड़ी, जो कि अब इंडिया में बात करें ओनली 59% इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए बैठने की जगह या खेलने की जगह, ओनली 59% ऑल ओवर इंडिया. सो ये सब कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आंगनवाड़ी एक लैक में जा रहा है, या फिर एक हमारे लिए वर्क नहीं कर पा रहा है. एंड गवर्नमेंट को आई थिंक सो जितना जल्द हो इस चीज़ पे काम करके इट शुड बी इम्प्रूव्ड. सो कभी भी अगर आंगनवाड़ी पे क्वेश्चंस आए तो यू कैन राइट ऑल दी थिंग कि इंडिया का क्या स्टेट है, क्यों आंगनवाड़ी इम्पोर्टेंट है, उसका क्या चैलेंजेस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इम्पैक्ट बन सकता है, क्यों लाना चाहिए, एंड ऑल दी थिंग्स. नेक्स्ट आर्टिकल पे जाएं. अगला आर्टिकल है हमारा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अ नेग्लेक्टेड केस. जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो इसमें जो है हमारे हमारे मिस्टर CV रमना हैं, उन्होंने ये बोला था कि इंडिया
नोटिस किया गया था कि इंडिया को जो हमारा सेंट्रली सर्विस स्कीम है उसमें हमें फंड्स दिए थे कि इंडिया में आपको जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने हैं, बट नोटिस ये किया गया था कि उतना परसेंट ऑफ फंड यूज़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से मिस्टर सी वी रमना का ये बोलना है कि हमें एक बॉडी बनानी चाहिए बाय द नेम ऑफ NJIAI, विच इज़ नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि पूरी जुडिशियल इंडिया के सारे जुडिशियल सिस्टम्स में क्या डेवलपमेंट चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए, क्या कहाँ रेनोवेशन चाहिए, किस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ों पर ध्यान देगा। तो एक प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नया इनिशिएटिव है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ध्यान में रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी का पार्ट बनता है ये। सो सेंट्रल इनको बोला गया है कि मतलब मिस्टर रमना ने ये बोला है कि हमें एक सेंट्रल एजेंसी, एक नोडल बॉडी जो है NJIAI को बनाना चाहिए, जो कि सारे ही कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, सभी कोर्ट्स के ऊपर ध्यान रखेगा कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको ज़रूरत है। सो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड या इसकी ज़रूरत क्यों बनी, इट वॉज बिकॉज कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है इट इज़ वेरी पुअर, क्योंकि मैं बात करूँ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखने तक की एक प्रॉपर मैकेनिज़्म या प्रोसेस नहीं है यहाँ पर। शॉर्टेज ऑफ कोर्ट्स हम देखते हैं कि हॉल्स नहीं मिल रहे, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं किए जाते। सो इंडिया अभी फ़िलहाल उस स्टेज में है जिसमें सभी चीज़ों में दे आर लैकिंग बैक। दे नीड टू मेक मोर हॉल्स, दे नीड टू रिक्रूट मोर जजेस, दे नीड टू टेक मोर केसेस इन द फास्ट ट्रैक, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। एंड बिकॉज ऑफ समहाउ वी कैन से द पुअर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द स्कीम्स, हम ये देख रहे हैं कि हमारा जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। आज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में हमें ये बोला गया था कि हम आपको अमाउंट देंगे एंड मतलब उस अमाउंट पे यू विल वर्क फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। अप्रॉक्सीमेटली 98 करोड़ का कुछ 98 या कुछ तो अमाउंट का करोड़ का में ही अमाउंट दिया था, जिसमें सिर्फ कुछ लाख ऑफ मनी यूज़ हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, अगर आपको अमाउंट दिया जा रहा है तो यू यूज़ इट। देयरफॉर उन्होंने बोला कि हम एक बॉडी बनाएंगे बाई NJI जो भी है, एंड उसके अंडर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, एक डिग्री ऑफ अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि एक प्रॉपर ऑटोनॉमी रखेगा अपने पास और सारे ही जो लैकिंग पॉइंट्स है उसको रिकवर करने की कोशिश करेगा। इट विल वर्क एज एन सेंट्रल बॉडी और एजेंसी सभी जुडिशियल वर्क चीज़ों पर। सो इट विल वर्क। अब इसमें भी क्या बोला था कि दे विल फॉलो द मॉडल। ये मॉडल का जो अगर नाम मैं बोलूँ तो ये मॉडल को नालसा मॉडल बोला जाता है। नालसा मॉडल क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। एक ऐसा बोला गया कि ये मॉडल बनाया जाएगा। इस मॉडल के अंडर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस के अंडर ये बॉडी जो है ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट के सेंटर पे काम करेगी और नालसा मॉडल जो है जो कि लीगल सर्विसेज के हिसाब से डिसाइड करेगी। सो ये जो बॉडी है इट कम्स अंडर दी नालसा मॉडल, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर आता है और एक प्रॉपर वर्किंग के लिए ये बॉडी बनाया जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ हमारा नालसा मॉडल आप कंसिडर करो नीति आयोग है, और नीति आयोग के अंदर जैसे हम अलग अलग स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बनाते हैं वो हमारा NJAI है। सो दैट वाज अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट और द चेंज के बारे में बात की गई है। और somehow इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी बिकॉज इंडिया का जुडिशरी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल जो है बहुत ख़राब हो गया है। क्योंकि अगर आप डेटाज भी देखेंगे, पता नहीं क्लियरली दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जो अमाउंट लगाए गए हैं 981.98 करोड़, जिसमें से यूज़ सिर्फ 84.9 करोड़ यूज़ हुआ है। सब जगह पे जो है अमाउंट डिग्रेडेड है, यूज़ नहीं कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज रखा गया है। सो इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर करेंटली। लेट्स सी क्या इनिशिएटिव उसके अंडर लिया जाता है और नालसा मॉडल को फॉलो किया जाता है कि नहीं। लास्ट आर्टिकल पे आते हैं। लास्ट आर्टिकल है द आर्म्स टूवर्ड्स हाइपरसोनिक वेपन्स, ठीक है। आर्म्स टूवर्ड्स हाइपरसोनिक वेपन्स में अगर मैं बात करूँ तो हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि चाइना ने अपना सुपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया जो कि ऑल ओवर द ग्लोब राउंड मार के देन इट पोजीशन इट्स टारगेट, जो कि US ने देख के बहुत ज़्यादा शॉक हुआ था बिकॉज इट वाज वेरी फास्ट, ठीक है। सो ये आर्टिकल की तरह थोड़ा हम हाइपरसोनिक मॉडल्स देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं।
सबसे पहली चीज़, चाइना ने रिसेंटली अपना टेस्ट किया था हाइपरसोनिक मॉडल अप्रॉक्सीमेटली अगस्त और इसी टाइम पर, जिसमें कि उन्होंने देखा था कि पूरा ग्लोब का एक राउंड मार के देन इट केम एंड टच्ड द टारगेट एंड इट वाज वेरी फास्ट, जिसकी वजह से ये कंसर्न बना बाकी कंट्रीज़ के लिए। पहले आर्टिकल के थ्रू देख लेते हैं आर्टिकल क्या बताते हैं, देन विल नो और स्टडी मोर अबाउट इट। सो हाइपरसोनिक मॉडल क्या है या हाइपरसोनिक वेपन्स क्या होते हैं? दे आर द मैन्यूरेबल वेपन्स दैट कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ एक्सेस 5 मच। 5 मच क्या है? जो हमारा साउंड ट्रैवल या साउंड स्पीड है वो 1 मच होता है। सो उससे ज़्यादा फास्ट हमारा हाइपरसोनिक वेपन ट्रैवल करता है। एंड ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स हो सकते हैं या फिर किसी भी टाइप ऑफ वेपन्स जिसमें बनाया सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रॉपर मतलब उसका उतने स्पीड से वो ट्रैवल करेगा। So, according to the latest memos of the Congressional Research Paper Service, hypersonic weapons is the background issues of Congress and it was developed. अभी स्टेटस क्या है चाइना और रशिया की लेके बात अगर मैं करूँ, तो पहले तो चाइना ने अपना ये मॉडल का टेस्टिंग किया। उसके बाद हमने अभी रिसेंटली देखा था कि जब यूक्रेन ने नाटो और इसका हेल्प लिया था यूएस का, तभी रशिया ने बोला कि हमारा भी हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन तैयार है, हम भी वेपन्स के साथ तैयार हैं। तो रशिया ने भी अपना जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्टिंग किया, जिसका नाम था सिरकॉन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि चाइना अपना वेपन तैयार कर रहा है, रशिया अपना वेपन तैयार कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है? यूएस कुछ तैयार कर रहा है, यूएस के लिए क्या चीज़ है वो? तो ये चीज़ बताया जाता है कि फ़िलहाल यूएस जो है बोल रहा है कि वी आर डेवलपिंग डिफरेंट मिसाइल्स या वेपन्स हम बना रहे हैं, बट करेंटली यूएस एक्चुअली पीछे है चाइना और रशिया से व्हेन इट कम्स टू हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इंडिया या बाकी कंट्रीज़ का क्या पोजीशन है हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर। सो कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये लोग भी अपने हाइपरसोनिक वेपन्स टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ड्यूअल कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाने की बात कर रहा है अंडर HSTDV, दैट इज़ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम। ठीक है, DRDO के अंदर इसको बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे हम अप्रॉक्सीमेटली 6 स्क्रैम जेट्स बनाएंगे विद दी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल टू हम, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक बेनिफिशियल पार्ट है। सो ये कुछ नाम आपको याद रखना है कि किसने ऑल ओवर द ग्लोब या स्टेटमेंट्स अगर दिया तो यू कैन आइडेंटिफाई इट। सो दैट वॉज फॉर टुडे। आई होप सो आपको आज का आर्टिकल क्लियरली समझा होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।